Hello friends, today we are going to discuss about the important milestone of the baby. There are the four types of milestone we discuss here. First one very important gross motor milestone, second one fine motor milestone, and third one language related milestone, and fourth one personal and social related to milestone. What is the means of the gross motor milestone? Are those milestones related to posture and movements are known as the gross motor movements. Next one, what is the means of the fine motor movements? Fine motor movements are those which are related to manipulation of objects by hands. Next one, language milestone are those which are related to hearing, understanding and speaking. Next one, personal and social milestone are related to interaction with self and others. So there are the four types of milestone. First one gross motor, second one fine motor, and third one language, and fourth one personal and social milestone. Next one, identify the various sporters. The first one sporters है sitting with supports. Sitting with supports. Next one sporter है sitting without supports. Next one sporter है standing with supports. Next one है standing without supports. Next one है walking with support. Next one है walking without supports. There are various types of milestone. First one we discuss here sitting with supports. G. Here the baby learned around the 6 months. Sitting with supports baby learned around the 6 months. जबकि sitting without supports learn baby around the 8 months. Next one है standing with supports baby learn around the 9 months. Next one standing without supports around the 12 months. Next one very important walking with supports also 12 months. Walking without supports 13 to 15 months. 1 month में आंसर अराउंड द 15 months. तो आपको ये सारी चीजें आपको याद रखना है. जैसे बेबी स्टैंड करना कब सीखेगा? विथ सपोर्ट्स 9 months, विदाउट सपोर्ट 12 months. 12 month का जस्ट ऑफ 6 months. 6 months में सिटिंग विथ सपोर्ट. विदाउट सपोर्ट सिटिंग विदाउट सपोर्ट्स कब लर्न करेगा? 8 months. तो ये सारी चीजें आपको याद रखना. फर्स्ट जो इमेज दिखाई दे रही है इसमें सिटिंग विथ सपोर्ट बेबी 6 months. आपको जो सेकंड इमेज दिखाई दे रही है सिटिंग विदाउट सपोर्ट्स कब लर्न करेगा बेबी? 8 months. नेक्स्ट वन वॉकिंग विथ सपोर्ट्स स्टैंडिंग without support. Walking with supports, standing without supports around the 12 months. Baby विदाउट सपोर्ट के स्टैंड रहना और वॉकिंग विथ सपोर्ट्स कब लर्न करेगा? 12 months. जबकि वॉकिंग विदाउट सपोर्ट्स 13 to 15 months. नेक्स्ट वन माइलस्टोन है वेरी इंपॉर्टेंट. बेबी ये जो ड्राइंग स्किल है वो कब डेवलप होती है बेबी के अंदर? फर्स्ट वन है स्ट्रेट लाइन. इसको याद करने का फंडा है स्ट्रेट लाइन. इसमें आपको याद रखना है एक लाइन के दो एंड होते हैं.
वन लाइन के दो एंड होते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली ये 2 years में बेबी इसको लर्न करना सीखता है। बेबी ड्रा ए लाइन अराउंड द 2 years। आपसे पूछे बेबी लर्न टू सर्किल, सर्किल बनाना बेबी कब सीखता है? अराउंड द 3 years। बेबी लर्न टू सर्कल अराउंड द 3 years। नेक्स्ट वन रेक्टेंगल। इसको याद करने का फंडा है, रेक्टेंगल में 4 वर्टिकल लाइन होती है, रेक्टेंगल में 4 वर्टिकल लाइन होती है। सो इसको बेबी लर्न करना कब सीखेगा? अराउंड द 4 years। नेक्स्ट वन है, इन सब में टिपिकल क्या रहेगा? ट्राइएंगल। तो ट्राइएंगल बनाना बेबी लगभग लर्न करता है अराउंड द 5 years, अराउंड द 5 years। और इन सब में से जो सबसे टिपिकल जो ड्राइंग है वो डायमंड शेप। डायमंड शेप बेबी लर्न करना कब सीखता है? अराउंड द 6 year। डायमंड शेप जो बेबी लर्न करना सीखता है वो कब सीखता है? अराउंड द 6 year। तो आपको है ना इनको याद रखना है। स्ट्रेट लाइन को है ना कैसे याद रखोगे? एक लाइन के दो एंड होते हैं। सो इसको कब लर्न करेगा? 2 years। सर्किल बनाना इजी है इसलिए इसको अराउंड द 3 years। रेक्टेंगल बनाना कब सीखता है? इस रेक्टेंगल में 4 वर्टिकल लाइन होती है। कितनी होती है? 4। तो सो इसको बनाना कब सीखेगा? 4 years। ट्राइंगल थोड़ा डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली इसको रेक्टेंगल के बाद में ही बनाना सीखेगा। कब? 5 years। डायमंड शेप को कब सीखेगा? अराउंड द 6 years। नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। सिटिंग विथ सपोर्ट्स कब सीखेगा बेबी? अराउंड द 6 months। नेक्स्ट वन सिटिंग विदाउट सपोर्ट्स कब सीखेगा बेबी लर्न करना? अराउंड द 8 months। स्टैंडिंग विथ सपोर्ट्स बेबी कब लर्न करना सीखता है? अराउंड 9 months। नेक्स्ट वन है स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट्स, ये कब लर्न करना सीखता है? अराउंड द 12 months। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ और ये भी बहुत बार। नेक्स्ट वन वॉकिंग विथ सपोर्ट्स कब लर्न करता है बेबी? आल्सो 12 months। वॉकिंग विदाउट सपोर्ट्स 13 to 15 months। कब लर्न करना सीखता है बेबी? 13 to 15 months। नेक्स्ट वन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ए चाइल्ड लर्न टू वॉक 1 year। ए चाइल्ड लर्न टू वॉक in 1 year, so definitely sit in half of that time, means 6 months। बेबी चलना कब सीखता है? अराउंड 1 year। तो डेफिनेटली ऑफ टाइम में वो क्या सीखेगा? बैठना अराउंड द 6 months। ये आपको दो बेबी है ना जो इस फोल्डर में दिखाई दे रहे हैं, एक बेबी तो कर रहा है क्रीपिंग और दूसरा बेबी कर रहा है क्राउलिंग। ये वाला जो बेबी है वो क्या कर रहा है? क्राउलिंग। सेकंड वाला बेबी है वो क्या कर रहा है? क्रीपिंग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रीपिंग कब सीखेगा? क्रीपिंग अराउंड द 8 to 9 months। सॉरी, क्राउलिंग जो करना सीखता है बेबी वो कब सीखता है? 8 to 9 months। जबकि क्रीपिंग करना 10 to 11 months। 10 to 11 months में क्रीपिंग और क्राउलिंग कब सीखेगा? 8 to 9 months। आपको याद रखना है, इसको भी है ना याद करने का फंडा है। क्राउलिंग और दोनों वर्ड्स आपको राइट डाउन करना है। क्रीपिंग बताओ इन दोनों में से पहले ए आता है या ई? ए। तो ए तो कब रहेगा? 8 to 9 months। जबकि ई है ना बाद में आएगा, तो ये लगभग लर्न करना सीखता है 10 to 11 months। तो क्रीपिंग 8 to 9 months, सॉरी क्रीपिंग तो कब? 10 to 11 months
और क्राउलिंग करना कब सीखेगा? 8 to 9 months, है ना। इसको ऐसे भी याद रखते हैं, याद रख सकते हो, A comes before E, so crawling comes before creeping. नेक्स्ट वन है राइड्स ए ट्राईसाइकिल, कितने ईयर्स में? 3 years। ये भी इंपॉर्टेंट है, goes up stair and down stair by 2 feet या 2 step at around the 2 years। up stair and down stair by the baby जो है ना 2 feet या 2 step, वो कब करेगा? अराउंड द 2 years। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है, ये बहुत ही अच्छा है, याद करने का फंडा, नंबर ऑफ क्यूब पुट इन टावर बाय ए चाइल्ड। क्यूब को बेबी टावर के रूप में अरेंज करना कब सीखता है? इसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला आपको याद रखना है, एज मल्टीप्लाई 3। फार्मूला क्या है? एज मल्टीप्लाई 3। जैसे सपोज करो बेबी 6 क्यूब का टावर बनाना कब सीखेगा, कब लर्न करेगा? 6 क्यूब का टावर लर्न कब करेगा? तो आपको इस फॉर्मूले में इसको राइट डाउन करना है। बताओ, यहाँ पर एज को मैं मान लेता हूँ x मल्टीप्लाई 3, कितने का टावर बनाना? 6। तो आपके पास में है ना ये आगे वैल्यू, तो x इक्वल टू कितना? 2 years। जैसे आपसे पूछे 9 क्यूब का टावर बनाना बेबी कब लर्न करेगा? रखो इस फॉर्मूले में एज मल्टीप्लाई 3 मीन्स मैं 3 को कितने से मल्टीप्लाई करूं? 9 आ जाएंगे, तो दैट इज द x मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9। कितने से मल्टीप्लाई करूं? 3 से। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? 3 years। तो आप इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो नंबर ऑफ क्यूब पुट इन टावर बाय ए चाइल्ड। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला कौन सा रहेगा? एज मल्टीप्लाई 3। अब आपसे पूछे सो ए 2 years, 2 years का बेबी, 2 years का जो बेबी है वो कितने क्यूब का टावर बना सकता है? तो एज कितनी है? 2 और 3 कितना हो जाएगा? 6 क्यूब का टावर। आपसे पूछे 3 years का बेबी, रखो इस फार्मूले में 3 मल्टीप्लाई 3 कितने क्यूब का बना सकता है? वो 9 क्यूब का टावर बना सकता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है एज मल्टीप्लाई 3, जितने भी क्यूब का है ना वो टावर बना सकते हैं। जैसे 3 years 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 9 क्यूब का टावर। तो ये तो हो गया बेबी टावर बनाना। एक और याद करने का आपको फंडा है, 15 मंथ्स के बेबी को याद रखने का ना 2p, p फॉर दैट इज द यहाँ पर पैंट, कौन सी है? इंडिकेट फॉर द वेट पैंट्स। एक p से यहाँ पर मीन्स रहेगा पॉन्टी। 15 मंथ्स का बेबी लर्न करता है, इंडिकेट द आल्सो ना वो, indicate for wet pants and also ask for object by pointing। pointing points जो ऑब्जेक्ट है उनके रिगार्डिंग बेबी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। नेक्स्ट वन है 18 मंथ्स के बेबी में 2 डी, एक डी से मीन्स यहाँ पर डोमेस्टिक मिमिक्री एंड सेकंड वन डी से है ड्राई बाय द डे। 15 मंथ्स में जो आपको याद रखना है 2p का मीन्स यहाँ पर एक p का मीन्स तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेट पैंट्स, और दूसरे p का मीन्स होता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बाय पॉइंटिंग्स। नेक्स्ट वन डी से डोमेस्टिक मिमिक्री एंड सेकंड डी से मीन्स होता है ड्राई बाय द डे। नेक्स्ट वन है a child can do following activities। आपसे पूछे बटनिंग ऑफ क्लॉथ्स, बटनिंग ऑफ क्लॉथ्स की माइलस्टोन डेवलप होता है अराउंड द 4 years। ये रिसेंटली क्वेश्चन है पूछा हुआ। नेक्स्ट वन आपसे पूछे टाइंग ऑफ लेस, लेस टाई करना बेबी कब लर्न करता है?
अराउंड द 5 years. बेबी लेस जो टाई करना वो सीखता अराउंड द 5 years. जबकि बटनिंग ऑफ क्लॉथ्स कब लर्न करना सीखता है 4 years. नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कब से कर सकते हैं अराउंड द 18 months. जबकि बेबी टॉयलेट गोज अलोन, बेबी अकेला टॉयलेट में कब जा सकता है अराउंड द 4 years. टॉयलेट ट्रेनिंग कब स्टार्ट करते हैं 18 months. क्राउलिंग लगभग 8 to 9 months. जबकि क्रीपिंग 10 to 11 months. 10 to 11 months. ये वाला बेबी क्या कर रहा है क्राउलिंग कब 8 to 9 months. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिंसर ग्राफ ये अराउंड द 9 months. ड्रेस वन सेल्फ अराउंड 3 years. ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ये जो माइलस्टोन है कंट्रोल बॉवेल एंड ब्लैडर एट डे टाइम. डे टाइम तो वो कब सीखेगा 2 years. और आपसे पूछे एट नाइट टाइम कंट्रोल बॉवेल एंड ब्लैडर लगभग 3 years. If more than 5 years bladder and bowel control are not established is known as the उसे क्या बोलेंगे न्यूरेसिस. यदि 5 साल से भी ज्यादा ब्लैडर कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं उसे कौन सा डिसऑर्डर बोलेंगे एन्यूरेसिस. इसमें एग्जाम में ये भी पूछते हैं व्हाट आर द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द एन्यूरेसिस. इसका राइट आंसर है डेस्मोप्रेसिन. क्या इसका राइट आंसर डेस्मोप्रेसिन. नेक्स्ट वन माइलस्टोन है नो सेक्स एंड नेम इज या हर बेबी. इसका राइट आंसर है अराउंड द 3 years. और आपसे पूछे वे बाय बाय लगभग 8 to 9 months. कब होता है बेबी बाय बाय करना 8 to 9 months. नेक्स्ट वन है फीडिंग सेल्फ विद स्पून अराउंड द 12 to 15 months. फीडिंग सेल्फ विद स्पून 12 to 15 months. नेक्स्ट वन ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड कब लर्न करेगा बेबी लगभग 6 to 7 months. 6 to 7 months. नेक्स्ट वन ये जो स्पोर्टर दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे दैट इज नोन एज द क्या बोलेंगे इसे क्रीपिंग. और क्रीपिंग कब होगा 10 to 11 months. 10 to 11 months. नेक्स्ट वन है स्टैंड ऑन. बेबी स्टैंड ऑन 1 feet एंड जंप. बेबी 1 feet पर स्टैंड 1 feet पर या 1 जंप कब है ना वो कर सकता है लगभग अराउंड द 3 years. नेक्स्ट वन क्वेश्चन पुट शूज एंड सॉक्स ऑन अराउंड द 2 years. नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रंट टू सुपाइन पोजीशन. ये मैं बात करूं जो बेबी है रोल ओवर करना कब सीखता है 6 months. आपको याद ना हो तो है ना याद रखना है रोल ओवर है ना. एक और यहाँ पर ये लगाना है रोल ओवर बेबी करना कब लर्न करता है अराउंड द 6 months. रोल ओवर कौन सी पोजीशन फ्रंट टू सुपाइन पोजीशन कब रहेगा 6 months. नेक्स्ट वन है राइडिंग राइट से ट्राई साइक्लिंग बेबी कब लर्न करता है अराउंड द 3 years. आपसे पूछे पैरेलल प्ले बेबी लर्न करना कब सीखता है अराउंड द 1 to 3 years. इसका एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द 2 years. आपसे पूछे टॉडलर टॉडलर कौन से एज ग्रुप को बोलेंगे टॉडलर कौन से एज ग्रुप को बोलते हैं 1 to 3 years. कौन से एज ग्रुप के बेबी को क्या बोलेंगे टॉडलर 1 to 3 years. नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
आपसे पूछे कूइंग साउंड्स अराउंड द, कब होगा? 3 months. Laugh loudly around the 4 months. Monosyllables, bisyllables, 1 to 3 words with meaning, simple sentence. Fear of stranger. ये भी है ना, एम्स भुवनेश्वर, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ. एग्जिबिट्स फियर ऑफ स्ट्रेंजर कब लर्न करेगा? लगभग शो करता बेबी 6 to 7 months. फियर ऑफ स्ट्रेंजर लगभग कब शो करेगा बेबी? 6 to 7 months. नेक्स्ट वन है मोनोसिलेबल्स, बेबी कब लर्न करता? अराउंड 6 months. बाइसिलेबल्स जो बेबी लर्न करता है अराउंड द 9 months. सिंपल सेंटेंस अराउंड द 12 months with meanings. सॉरी, 1 to 3 words with meaning कब लर्न करेगा बेबी? 12 months. जबकि सिंपल सेंटेंस अराउंड द कब लर्न करता बेबी? 2 years. तो ये भी आपको याद रखना है. कूइंग साउंड्स 3 months, laugh loudly 4 months, monosyllables 6 months, bisyllables 9 months, 1 to 3 words with meaning 12 months, simple sentence 2 years. Exhibition fear of stranger so by the baby around the 6 to 7 months. ये एम्स भुवनेश्वर का क्वेश्चन है. अगर ये आपको याद रह सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है. एक तो ये नेक होल्डिंग प्रेजेंट कब हो जाता है? अराउंड द 3 months. आपसे पूछे फ्रंट टू सुपाइन पोजीशन या रोल ओवर कब? 6 months. जबकि इसके अपोजिट सुपाइन टू फ्रंट कब? 7 months. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जो याद है जैसे वर्ड्स अराउंड द 10 to 11 months. नेक्स्ट वन ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. बेबी किक है बॉल, बेबी है ना, बॉल को किक करना कब सीखता? अराउंड द 24 months या 2 years. ये भी इंपॉर्टेंट है. गोज अप स्टेप एंड डाउन स्टेप 2 feet या 2 steps कब लर्न करेगा? अराउंड द 2 years. अगर 1 foot या 1 step आपसे पूछे रेडी दाव कब रहेगा? 3 years. नेक्स्ट वन एक ये माइलस्टोन, ये वाला भी आपको याद रखना. ड्रिंक्स फ्रॉम कप अराउंड द कौन से एज ग्रुप में? 15 months. ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है. टर्न्स 2-3 पेजेज वो कब सीखता लर्न करना बेबी? 18 months. जबकि टर्न पेजेज ऑफ ए बुक सिंगली, मैक्स सिंगल पेज को टर्न करना कब सीखेगा? अराउंड द 2 years. नेक्स्ट वन ड्रेसेज एंड अनड्रेसेज सेल्फ अराउंड द 3 years. बटनिंग ऑफ क्लॉथ 4 years. ये भी इंपॉर्टेंट है. प्लस का साइन, क्रॉस का साइन, प्लस और क्रॉस का साइन बेबी लर्न करना कब सीखता है? अराउंड द 4 years. नेक्स्ट वन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, सोशल स्माइल कब लर्न करता बेबी? अराउंड द 2 months. बेबी रिकॉग्नाइज हिज या हर मदर अराउंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मिरर इमेज या स्माइल्स एट अ मिरर around the 6 months. Mirror play 6 months. Kiss on request around the 12 months. Wave bye bye
9 months, 8 to 9 months. Fear of stranger around the 6 to 7 months.